So friends, welcome to our new channel, Portal to Study. In this channel, you will get the videos on physics and maths of standard 11th and 12th state board. So let us start a new chapter of 12th, that is rotational dynamics. And in it, today we'll study some points about circular motion. So friends, what is circular motion? Circular motion is motion of a particle or a body along the circumference of a circle. This is known as circular motion. So here you can see an example of circular motion. This particle, this blue colored particle is performing a circular motion, right? So as you can see, we can describe circular motion in two types, the revolution and the rotation. So what is revolution? Revolution means the motion of a particle along a circumference of circle about a fixed center or about a fixed point. So here this is the point. We can name it as O and the radius R. So as you can see, this particle, blue colored particle, is performing revolution. So the next we can see what is rotation. So in rotation, in general we can say that all the points are performing circular motion about a fixed axis. As you can see in example here, the earth is rotating about itself and this is its axis. So every particle present on the earth is performing circular motion. If this is the point, this point is performing circular motion in this way. If this particle is to be taken, the radius will be large, so it will perform circular motion in this way, right? So this is all about circular motion. Now we'll see the characteristics of circular motion. Basically there are two characteristics of circular motion. The first is about the acceleration and the second is about the periodic motion. Whenever the particle performs circular motion, it has some acceleration. It can be described as, if the particle is present here, the acceleration has two parts. One part is along the tangent and the other part is along the center. The path along the tangent we can name as AT and the path towards the radius we can name as AR. तो ये दोनों एक्सेलरेशन कंबाइन होकर टोटल एक्सेलरेशन बनता है. अब ये एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट. इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगा. तो हियर एज वी कैन सी द एक्सेलरेशन हैज टू पार्ट्स, टेंजेंशियल एंड रेडियल. आप लोगों ने एक बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ये कि कोई एक थ्रेड है, थ्रेड से स्टोन को बांधिए और उसको ऐसे घुमाए. जब उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसके पास दोनों एक्सेलरेशन होता है, रेडियल और टेंजेंशियल. अगर ऐसे घुमाते घुमाते स्टोन को वो छोड़ दिए, थ्रेड छोड़ दिए, तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी में जाएगा स्टोन. और वो घुमाने से जब तक वो घूमता रहेगा, जब तक हम उसको घुमाते रहेंगे, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा उसमें, जो आपको आपके फिंगर्स पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो in circular motion, whenever it has two accelerations, every time it has two accelerations, therefore circular motion is known as accelerated motion. And the next property now is circular motion is a periodic motion. How? Let's consider an example. If a particle is, for example, here at a specific time, right, it will perform the circular motion in this way. It will trace this path and finally it will come to this point, but it will not stop at this point. It will again trace the same path and continue its circular motion. So tracing its own trajectory is known as periodic motion simply, right? So here we have seen two characteristics of circular motion, that is, it is an accelerated motion, and the second, it is periodic motion. Let's see further few points. So you have studied in 11th standard linear or translational motion, right? So this is linear and translational motion. So here are some new points or new notations, new descriptions about rotational motion. So we know displacement in linear motion.
For example, if we take a block, this is the surface, this is a block, and we apply some force on this block. So in the direction of force, there will be displacement, velocity and acceleration. For example, if this position is A and this position is B, so by the application of this force, there will be some displacement. For example, from A to B. So this will be linear displacement or simply displacement. But in rotational motion, the concept is different. For example, this is the circle, the radius, the center O, the radius R. For example, a particle is present here at a specific time. After some time, it will go here. So if we connect these lines to the center, this is the angle forming theta. So this now is not a straight line, it's a curve, it's an arc. So the particle is moving through an arc, or we can say through an angle theta. So here the displacement changes to angular displacement, right? So we can call it as angular displacement theta. The next thing we have known from 11th standard, it's velocity. If we apply force to this block, it will move in this direction with some velocity v, right? And the velocity will be in the direction of force. अगर हम कोई ब्लॉक को ये साइड में धक्का देते हैं तो उसकी वेलोसिटी या उसका मूवमेंट भी वही साइड होगा. अगर हम कोई ब्लॉक को फोर्स इधर लेते तो वो उल्टे साइड में तो नहीं जाएगा. सो बट हियर द कंसेप्ट इज डिफरेंट टू. अब यहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर वेलोसिटी मतलब वो थ्रेड को जो हमने पत्थर बांधा था उसको कितना स्पीड में हम घुमा रहे हैं. अब यहां पर वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ऐसा. ये है एंगुलर वेलोसिटी. जैसा हम वेलोसिटी को डिफाइन करते थे, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो चुका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. करेक्ट. सो गोज द कंसेप्ट विथ एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? So here we have angular acceleration alpha. So angular acceleration will be rate of change of angular velocity omega, right? So let us see a few more points. So here you can see a circle, an arc length S, a theta and a radius R, theta angle and a radius R. So you have studied in 11th standard that this formula S is equal to R theta, right? The arc length equals to the radius times the angle. अब यहां पर मैं एक छोटा सा आर्क लेंथ लेता हूं S. अब in physics or mathematics, if you want to show a small quantity, we denote it by delta. So this will be delta S and the angle will be delta theta. अब यहां पर रेडियस तो छोटा नहीं कर सकते, तो ये तो पाथ ही छोटा हो जाएगा. अगर रेडियस छोटा किए तो ये पाथ ही चेंज हो जाएगा. तो रेडियस तो कांस्टेंट है, टोटल रेडियस r. अब यहां पर उससे क्या चेंजेस होंगे? तो s चेंज हो जाएगा डेल्टा s, r तो एज इट इज है, और थीटा चेंज हो जाएगा डेल्टा थीटा. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, वी विल गेट डेल्टा s बाय डेल्टा t इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. अब मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है लिमिट्स. अब वो एप्लीकेशन इधर हम अगर किए तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 r डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ये कंसेप्ट कि अगर ये ऐसे लिमिट का फॉर्मूला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds ओवर dt इज इक्वल्स टू r तो कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा r, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी. और हमने ये पहले ही देखे कि डी एक्स बाय डी टी क्या होता है? वेलोसिटी. अब एक्स क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और डी थीटा बाय डी टी होता है ओमेगा. तो यहाँ पर हमारा वैसे ही हो जाएगा सेम. डी एस, एस मतलब यहाँ पे है आर्क लेंथ, तो मतलब लेंथ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी लेते हैं हम तो हमको मिलता है वेलोसिटी, और r तो एज इट इज है,
और थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। चलिए हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। अब ये है, हियर वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, द रेडियस वेक्टर, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जब भी हमने ये बात देखे है कि जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड्स द रेडियस एंड एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ए टी है, ये ए आर है सॉरी, और यहाँ पर ए टी भी लिख सकते थे, लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन वी आर राइटिंग हियर एज v, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो if the particle is present here, the tangential velocity will be in this direction and the radial acceleration will always be towards the radius. So here you can see, if the particle is present here, the tangential velocity is in this direction and the radial acceleration is along the radius. अगर particle यहाँ होता है तो उसके velocity, tangential velocity ये direction में होगी और acceleration, radial acceleration ये direction में होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही पूरे सर्कल पे सेम होगा। तो सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। सो अब रेडियस का डायरेक्शन कैसा होगा? रेडियस का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। अगर ये सेंटर है O तो रेडियस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब आती है हमारी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी तो ये है, हमने देखे कि एंगुलर वेलोसिटी कितना स्पीड से घुमाए वो बता रहे हैं हमको। ये एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा बताया हुआ है। अब ये क्यों? ये हम देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? इफ द कर्व्ड फिंगर्स शो द पाथ ऑफ द सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन if it is the motion of the circle is along anti-clockwise direction. Understood? So if the particle is performing circular motion in clockwise direction, so this is the direction of the circular motion, so the direction of angular velocity will be perpendicular to the circle but in the downward direction. ये जैसे हमने अभी देखे कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है ऐसे, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा नीचे, ओमेगा। अंडरस्टूड? सो अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल फैन से देख सकते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब चेंज इन स्पीड है। तो हम जैसे फैन चालू करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको 3 पे रखना है, तो हम 0 से 0 1 2 3, तो जब तक हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो फैन की स्पीड इंक्रीज होंगी और 3 स्पीड आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएंगी। तो जब इंक्रीजिंग स्पीड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा सेम एज दैट ऑफ ओमेगा, ऊपर ही। और जब 3 पे आने के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएंगी फैन की, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर ही होगा अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अब जब हम फैन बंद कर देंगे तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है कम होती जाएंगी, पहले डायरेक्ट 0 नहीं होंगी। तो जब स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो जब एक्सेलरेशन कम होगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा नीचे, ऐसे। कब? जब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, और जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन ऊपर ही। तो यहाँ पर हमने देखा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेडियस वेक्टर r, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, राइट। अब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं एक साथ कि ये है डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर r, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी v एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट देखेंगे जो है आपका
टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। अब अगर ये सर्कल है एक, तो पार्टिकल जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो उसको यहाँ से वापस ये पाथ कवर करने के बाद वो ये पॉइंट पे आ गया। फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इसको 5 सेकेंड लगे। सो द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज 5 सेकेंड्स। अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है अगर, तो इसका रेडियस हम बोल देंगे r और सेंटर O, करेक्ट। अब यहाँ पर हमने एक लीनियर मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब ये हमको निकालना है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इसका, तो अब टाइम ऑफ रिवोल्यूशन तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर था डिस्टेंस, अब यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर पार्टिकल अपना यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहा है, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ रहा है, तो पूरा सर्कल का सरकमफरेंस हो गया इसकी लेंथ, तो ये हो गया 2 पाई r सरकमफरेंस। और स्पीड, इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है v, तो ये हो जाएगा v। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय v की जगह रखेंगे हम r ओमेगा, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड का। इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।